Hello guys, how are you all? My name is Ravi Shekhar and I'm the Faculty of Sociology at Understand UPSC. Now, in the last 2 months, I have had conversation with many students. Some of you unfortunately could not clear 2026 prelims. Looking at the weird nature of prelims 2026, you should not be disappointed or do not judge your caliber on that basis. But at the same time, you should be determined enough to prepare properly in a structured manner for 2027. And therefore, a Yakshi Prashn that would be with you is how to cover your optional also in a time bound structured manner so that by December your optional is mains ready, as if when you get to write mains you are capable enough to score 280 plus or 300, right? But then many students also lack focus in terms of how to distribute the syllabus into different schedule of week or monthly schedule, and then how to integrate answer writing in that syllabus coverage. So that is why this video is for all of you guys who are planning to write 2027 UPSC Civil Services examination. Those you have covered foundation course of sociology optional, or those you have covered sociology from your self study and want to have a comprehensive guidance program for sociology optional where there will be structured answer writing that you will be learning along with revision and comprehensive coverage of your syllabus, then this video is an important announcement for all of you guys. So please keep watching this video, and I over here at Understand UPSC have come up with a program called as Save for 2027 Students. This is a sociology answer writing and value enrichment. In this course, we'll be comprehensively covering your sociology optional. There will be around 40 plus classes that will be conducted, and in total you will be getting 23 tests that will be conducted weekly. Now let me proceed further with this program, but before explaining about this program, let me address some fundamental questions that students came to me and asked. The first question that they used to make is कि सर थिंकर्स पता तो हैं बट वो याद नहीं आते रहते हैं. Very popular question. और people don't know what thinkers to use where. Thinkers हैं हमारे पास बट हम उनका करेक्ट इंटीग्रेशन नोट्स में नहीं कर पा रहे हैं सर. यस सर, हमारा नोट्स बना हुआ है, हमने एक राउंड फाउंडेशन कोर्स कर लिया है, बट वी आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट द नॉलेज दैट वी कंटेन इन आवर नोटबुक टू द आंसर्स. या कुछ बच्चे होंगे कि सर हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, हमने बुक से सेल्फ स्टडी की है, but my answer is lacking structure and I'm lacking evaluation or feedback of how to improve that. फिर कुछ बच्चे होते हैं, they come up with questions like, sir, I think there is weak sociological language. Have you ever thought why are a student not scoring high in sociology paper 2 these days? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक परसेप्शन में, एक मिथ में जी रहे हैं कि वो जीएस के इंडियन सोसाइटी का पेपर है और उसको उसमें जीएस का इंडियन सोसाइटी के आंसर्स लिख के आने हैं. नहीं, दिस इज अ मिथ. उस पेपर का नाम है इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, सिर्फ इंडियन सोसाइटी नहीं है. तो एक सोशियोलॉजी का ही पेपर है रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी, जहां आप पार्ट ए में पहले पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज पढ़ते हैं, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल वर्क पढ़ते हैं और इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल पढ़ते हैं. और जो पार्ट बी है विच इज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, उसके थ्रू आप इंडियन सोसाइटी कैसे अरेंज्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसको समझते हैं. एंड पार्ट सी विच इज सोशल चेंज, वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स और डायनामिक्स हैं डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी में, उसको समझने की कोशिश करते हो. तो अगर आप जीएस की तरह उसमें आंसर लिखोगे तो आई एम श्योर यू, अनफॉर्चुनेटली, you won't be able to score high marks. And that is why most of the students are today stuck in this trap of 215, 220, maximum till 240. I want you guys to break this barrier of 240. And if you want me to help you, I would request you to please connect with us at Understand UPSC. You can walk in offline and you can ask for me and you can meet me, or
आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन में भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड। बट इस प्रोग्राम के बारे में तो हम चलिए बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है, हर बच्चा अलग होता है, एंड सिंस ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, उनके जो कंसर्न्स है वो भी काफी डिफरेंट होते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा इनकंसिस्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, किसी बच्चे को अनसर्टेनिटी लगेगी यूपीएससी के क्वालिटी लेवल के हिसाब से। एंड दैट इज वाई देयर इज सो मच वेगनेस एंड एब्स्ट्रैक्टनेस इन द योर प्रिपरेशन जर्नी कि कई दफा स्टूडेंट्स डीरेल हो जाते हैं अपने प्रिपरेशन गोल से। एंड सेव 2027, दिस सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग एंड वैल्यू एनरिचमेंट प्रोग्राम इज गोइंग टू save you and your preparation in that regard. I have wanted to, have a heart to heart with all of you. Those who are planning to write UPSC Civil Services examination in 2027, और आपका अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आपके पास कुछ मेजर जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आए होंगे। पहला कि रिवीजन करें तो कैसे करें, है ना, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे रिवीजन का, बिकॉज आई थिंक बाय दिसंबर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल रेडी हो जाना चाहिए। Unfortunately, you have not qualified for prelims, or if you have already covered your sociology optional once and you are planning to write UPSC CSE for the first time in 2027, for all of you students, this program is going to be useful because we are going to guide you with what shall be the strategy for revision in structured manner. दूसरा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता होगा कंटेंट कंसोलिडेशन का, है ना, कि आप रिवाइज किए, आपके पास एक बल्कि नोट्स है लेकिन अब आपको रिवीजन करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैं उससे भी रिलेटेड आपको गाइड करूंगा। देन तीसरा एक प्रॉब्लम होगा कि बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि कुछ कंटेंट में गैप है हमारे, लुकिंग एट द सर्टेन क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते होंगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये हमारे कवरेज में है ही नहीं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है या सुना ही नहीं है। तो जो भी रेलेवेंट कंटेंट एनरिचमेंट आपको करनी है इस 6 महीने के पीरियड में आपको वो भी कवर करना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। सोशियोलॉजी में ये 220 230 के ट्रैप में लोग इसलिए नहीं फंस रहे कि उनके पास नॉलेज नहीं है या दे डोंट, यस कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 बार मेंस लिख चुके होते हैं, दे ऑलरेडी have developed a certain amount of command over content, and yet they are stuck in that trap of 220. Answer writing is the gap. शुरुआत से जब आप structured और correct technique of answer writing सीखते हैं, जब आप different types of introduction, है ना, contextual justification and landing of your content, the body of the answer, and question specific structured conclusion लिखते हैं, तब आपको यूपीएससी हाई रिवॉर्ड करती है। तो यूपीएससी आपको क्या चेक करेगी कि आपके आंसर में कंटेंट कितना रिच है, कॉन्टेक्चुअल लैंडिंग है कि नहीं आपके कंटेंट का, इसके अलावा कितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने आंसर को लिखा है, कंटेंट का फ्लो कैसे हो रहा है ना, कॉन्टेक्चुअल डिमांड को मीट करते वक्त में। देन कुछ न्यूनेस है, कोई नोवेल्टी का पॉइंट है, ये वैल्यू एनरिचमेंट से कवर होगा, जैसे नए एग्जाम्पल्स, कितनी एनालिटिकल कैपेसिटी है आपकी, क्योंकि आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे क्रिटिकल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। एंड देन यूपीएससी विल लास्टली लुक एट कि क्या प्रेजेंटेशन आपका ठीक है या नहीं है, लेजिबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, राइट। सो दे बेसिकली ये सब कुछ आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में, बस कंटेंट की डिलीवरी आपको नहीं करना है, कंटेंट डेवलपर थोड़ी बनना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को निकालना है। वो आप तभी निकाल सकते हो व्हेन यू विल स्कोर हाई 280 to 300, and if you want to reach 300, so answer writing must be commanded in a proper structured manner. And last but not least, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ अपने पर्सनल लेवल पे आंसर्स लिखते तो हैं, बट दे डोंट नो कि वो आंसर कैसा जा रहा है एंड ऑल दैट, या फिर फीडबैक्स आपको अगर मिल रहे हैं, कहीं से भी आपको इवैल्यूएशन मिल रहा है, कुछ फीडबैक मिल रहा है, रिव्यू होके आता है आपके आंसर, उस फीडबैक को कैसे आपको इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर उस फीडबैक के इंटीग्रेशन के लिए आपको मेंटरशिप की जरूरत भी पड़ती है, राइट। सो दिस इज वेयर सेव कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। This is where Save Sociology, this program comes into picture. How do we answer all of this? Now, please understand this. This is the course schedule. इस कोर्स में बेसिकली हम लोग आपके लिए एवरी वीक 2 एनरिचमेंट क्लास चलाएंगे। हर वीक आपके लिए 2 क्लासेस हैं जो कि मैं खुद लूंगा, और उसके अलावा हर संडे टेस्ट्स होंगे, और ये जो टेस्ट्स होंगे ये थीम वाइज
जो भी आपका शेड्यूल बना होगा उसके वाइज ये टेस्ट्स कंडक्टेड होंगे। ये संडे को जो टेस्ट्स होंगे ये मिनी टेस्ट्स होंगे। इसमें ज्यादा फोकस क्या होगा कि एक टाइम बाउंड मैनर में 7 to 8 मिनट्स के स्ट्रक्चर में आप क्वेश्चंस को कैसे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग करते हैं। देयरफॉर जो मैं क्लासेस कंडक्ट करूंगा उसमें बेसिकली कुछ नॉलेज गैप है तो कुछ थीम का ओवरव्यू मैं कवर करूंगा। आपको कहीं पे वैल्यू एनरिचमेंट कंटेंट से रिलेटेड देना है तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद यूपीएससी कुछ पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करूंगा, और बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंटेंट ओरिएंटेड और उसको कैसे अप्लाई करके आंसर लिखा जाएगा इन क्लासेस में मैं आपको वो सिखाऊंगा। और उसके बाद संडे को फाइनली विल बी दैट डे वेयर इट विल बी व्हाटएवर यू हैव लर्नड विल बी टेस्टेड थ्रू दीज tests. So this is the schedule. You would see that the course is starting from 14th of July and the orientation for this course has been planned on 7th of July 2026. तो आप 7th of July 2026 को इसका orientation session attend कर सकते हैं. It will be both in online as well as offline mode. So please contact us at Understand UPSC and then people will guide you regarding this. Or else आप वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो और इस प्रोग्राम्स के बारे में और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा हाउ कुड यू डू इट। बट फर्स्ट जस्ट लुक एट इट कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन ऑफ दिस पेपर वो कैसे कवर हो रहा है थ्रू दिस प्रोग्राम। सो यू वुड सी दैट आफ्टर 7th of July, which is the orientation session, every week we've got 2 classes. So 14th July को first class होगा which is a Tuesday, 18th July को second class होगा which is a Saturday, and then Sunday को आपका फर्स्ट टॉपिक का टेस्ट होगा। अब देखिए थीम वाइज कवरेज हो रहा है कि फर्स्ट क्लास का थीम ये कवर होगा, सेकेंड क्लास का थीम ये कवर होगा, एंड देन फाइनली उसके बाद कंक्लूजन है आपका क्या कि उस पे आप क्वेश्चंस लिखोगे आपके टेस्ट्स के थ्रू। एंड लाइकवाइज वी विल बी कवरिंग इन होलिस्टिक मैनर फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months and this goes till the month of December। आप देखिए एकदम माइक्रो टॉपिक्स में हम लोग डिवाइड करके प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर आपको कुछ क्लासेस भी मिलेंगे, ठीक है, वीक में 2, और उसके बाद आपके टेस्ट्स होंगे। सो पेपर 1 का भी कवरेज होगा एंड पेपर 2 का भी कवरेज होगा। सो इन टोटल बाय द टाइम यू एंड विच इज द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, आपके जो लास्ट क्लास होंगे आपको 42 क्लासेस मिल रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था 40+ क्लासेस। सो 42 क्लासेस टोटल मिलेंगे। लास्ट क्लास होगा 5th of December को, एंड देन उसके बाद आप आपको टोटल 23 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 21 ये मिनी टेस्ट होंगे, और उसके बाद जो लास्ट 2 टेस्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट होगा, एक पेपर 1 का एक पेपर 2 का। सो बाय 20th of December यू वुड हैव रिटन लॉट ऑफ आंसर्स, अराउंड 200 आंसर्स के आसपास आपने एक टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट देना सीख जाओगे। आप स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग सीखोगे, आपको फीडबैक्स मिलेंगे, प्लस वो फीडबैक को इंटीग्रेट कैसे करना है, फॉर दैट मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर आपको मेरी तरफ से डायरेक्ट मेंटरशिप भी मिलेगा। सो व्हाट आर यू गेटिंग इन दिस कोर्स? यू आर गेटिंग क्लासेस, वैल्यू एनरिचमेंट and application of answer writing. In those classes you will learn of all of that and answer writing techniques. Then you will get tests, weekly tests, which will be evaluated and you will be provided feedback, and then you will get mentorship from my side so that you know how to integrate these feedbacks in your course preparation. And इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये भी होगा कि दिसंबर तक आपको वीकली टारगेट्स रहेंगे, तो उस वीकली टारगेट्स को फॉलो करते हुए यू वुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंसिवली cover your syllabus and आप procrastinate नहीं करोगे, and that is also important. And the other dimension of the program, अगर इस सेव प्रोग्राम को हम एक और तरीके से देखें, मतलब this is one aspect कि सेव is called as sociology, answer writing and value enrichment. But the other analogy of save program is this that I have made for you. So S will stand for structured answer writing. In this program I will ensure that by the time you are done with the course आप structured answer writing अच्छे से सीख जाओगे। दूसरा, looking at the questions and the nature of the questions, you would have understood that these days a lot of questions are of analytical and applied nature, and therefore every student needs to develop the ability of analytical thinking, and especially sociology में तो sociological centric thinking कि sociological lenses से आप अपने आंसर्स को जनरेट करो और प्रोवाइड करो। देयरफॉर उसके लिए थिंकिंग प्लस सोशियोलॉजिकल लेंस पे कैसे आपके कंटेंट को लैंड करेगा, तो उसके लिए कुछ थिंकर्स या कोई थियोरेटिकल लिंकेज या वैल्यू एनरिचमेंट चाहिए या कुछ कंटेम्प्रेरी लिंकेज होगा, वो भी कवर होगा। सो
आंसर एनालिटिकल थिंकिंग एंड देन वैल्यू एनरिचमेंट जो कि क्लास के थ्रू कवर हो रहा है. एंड लास्ट E is exam oriented practice. So S say structural answer writing, A say analytical thinking, V say value enrichment, and E say exam oriented practice. So this is what SAVE program is actually about. And if you go about it in this manner, I assure you that you will be confident before your prelims that your sociology optional has been completely covered and sociology optional का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा. प्लस क्या होता है कि क्लासेस जब आप आते हो तो आपको एक पीयर कम्युनिटी भी मिलती है. वहां पे जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो बंच ऑफ स्टूडेंट्स जब एक साथ प्रिपेयर करते हैं तो एक दूसरे से आप लोग आइडियाज ऑफ टेम्पलेट फ्रेमवर्क्स पीयर रिव्यूज ये भी सीखते हो और इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो डीरेल नहीं होता है. आप आइसोलेशन के ट्रैप में नहीं फंसते हो. Clear? Understood? So what you need to do is that either you can walk in at 11B Old Rajendra Nagar, New Delhi, and you can meet the student counselors and they can guide you with the program in detail and they'll tell you share you the process of enrollment, or you can go to the website, go over here, you can see the course features, and then on the website also theme wise the syllabus is also mentioned and how syllabus and in a scheduled manner how the syllabus is getting covered, when are the tests dated, and the test could be attended in both offline and online mode. And then हाइब्रिड तरीक जो जिनको हाइब्रिड रखना है कोर्स वो हाइब्रिड भी रख सकते हैं. जो दिल्ली में नहीं है और ऑनलाइन मोड में इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड में भी एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोग्राम को. एंड जो फिजिकल सेंटर्स पे आकर टेस्ट लिखना चाहते हैं फॉर देम फिजिकल सेंटर्स ऑन दी संडेज विल बी अवेलेबल. राइट? सो दिस विल बेसिकली cover each and every dimension of what you want and what you need for your preparation for civil services examination in terms of sociology optional. So trust me, this is what I would want you to do. If you want a structured mentorship, along with that, if you are looking for such a program where mentorship, answer writing technique, value enrichment classes, learning analytical thinking, everything you want to cover, and then exam oriented practice along, because आप एक या दो आंसर तो रूम में अच्छा लिख लेते होंगे बट एग्जाम एनवायरनमेंट में टाइम बाउंड मैनर में आप इतने सेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे लिख पाओगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्लस आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस कवरेज कर रहे हो, बट वो सिलेबस जो आप कवर कर रहे हो वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको मेंटरशिप की गाइडेंस होगी एंड दैट मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड बाय मी. तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन कवरेज एंड आंसर राइटिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए करना है फॉर द ईयर 2027, देन आई एम हियर to save 2027 for you. So go ahead, save your preparation and join Save 2027. That's all from my side today. Thank you. Have a nice day and take care. Bye-bye.